Dear students, today we are going to discuss about earth pressure on retaining walls. So, retaining walls are used to retain the earth materials. So, the main force that acts on a retaining wall is the lateral force developed due to the earth pressure or pressure due to the retained materials. So basically क्या है कि रिटेनिंग वॉल्स में जो मेन फोर्स एक्ट करता है वो कौन सा होता है, दैट इज लेटरल फोर्स. और लेटरल फोर्स डेवलप किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द अर्थ प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू द रिटेन मटेरियल्स. सो अगर रिटेनिंग वॉल सर यहाँ पे बेसिकली हम रिटेन मटेरियल्स कर रहे हैं तो मटेरियल्स क्या करेगा, प्रेशर जो है वो वॉल पे लगाएगा. सो उसकी वजह से क्या होगा कि लेटरल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा रिटेनिंग वॉल्स पे. सो ये जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, रिटेनिंग वॉल को डिस्टेबलाइज करेगा बाय ओवरटर्निंग, बाय बेंडिंग और स्लाइडिंग ऑफ द वॉल्स. सो द मेन force that acts on a retaining wall is the lateral force developed due to the earth pressure or pressure due to retained materials, and this force tends to destabilize the retaining wall by overturning, bending or sliding of the walls. So the magnitude of lateral earth pressure varies linearly with depth. So the height of the retained materials is capital H, and so lateral pressure, lateral pressure का निकालना है, that is P is equal to gamma K गामा एच. सो पी क्या है हमारा, बेसिकली क्या है, दैट इज लेटरल अर्थ प्रेशर. सो जो लेटरल अर्थ प्रेशर जो है ये बेसिकली एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है. सो एक्टिव प्रेशर क्या होता है, active earth pressure, that is PA. So active earth pressure PA is exerted on the wall when the wall has tendency to move away from the backfill. अगर वॉल हमारी जो है वो बैकफिल से अवे जा रही है तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्रेशर को बोलेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर. एंड द पैसिव अर्थ प्रेशर इज exerted on the wall when the wall has tendency to move टूवर्ड्स द बैकफिल. अगर जो वॉल है वो मूव करी टूवर्ड द बैकफिल तो उसको बोलेंगे दैट इज पैसिव अर्थ प्रेशर, दैट इज पीबी. सो वेयर P is equal to lateral earth pressure and gamma is equal to, that is unit weight of retained materials, and capital H is equal to, that is depth of retained materials below the earth surface. So and where K is equal to
that is coefficient of earth pressure. So मैक्सिमम जो अर्थ प्रेशर होगा वो कहाँ पे होगा, that is bottom of the retaining fault, that is Ka गामा H, एंड जो लेटरल फोर्स जो होगा that is PH, वो भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी that is हाफ Ka गामा H स्क्वायर, एंड ये जो एक्ट करेगा ये करेगा H/3 पे एक्ट करेगा. सो ये वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं. सो lateral force, that is PH, exerted on the wall due to earth pressure, that is PH is equal to हाफ, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है सो बेस कितना है मैक्सिमम पे, that is K गामा H, एंड टोटल हाइट कितनी है, दैट इज कैपिटल H. सो PH इज इक्वल टू हाफ Ka गामा H स्क्वायर. एंड दिस लेटरल फोर्स एक्ट कहाँ पे करेगा, दैट इज H/3 फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. सो दिस lateral force act at height H/3 from the base of wall. So based on Rankine's theory, so that is coefficient of earth pressure can be that is K, that is capital K क्या basically coefficient of earth pressure. So coefficient of earth pressure is determined by using the either Coulomb's theory or Rankine's theory of earth pressure. So based on Rankine's theory, so based on the Rankine theory, so first one is for horizontal backfill of cohesionless soil. So इसके लिए K that is की वैल्यू होगी that is 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई. एंड वेयर फाई जो है that is angle of friction, angle of internal friction, और कह सकते हैं angle of repose. And for second is for sloping backfill, that is K is equal to cos theta minus under root cos square theta minus cos square phi upon cos theta plus under root cos square theta minus cos square phi multiplied cos theta. So where theta is equal to angle of inclination of backfill with respect to
with respect to the horizontal. So next topic is forces on a cantilever retaining walls. So consider a cantilever retaining wall as shown in figure. The various forces acting on the retaining wall are as follows. So basically क्या है, cantilever retaining wall है. So यहाँ पे है W1, so ये W3, W2, W4. So basically कौन कौन से forces हैं जो act करते हैं cantilever पे. So the first one is that is lateral force PAH due to the active force acting at a height h/3 from the base. So basically कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स है. यहाँ पे आपका बैकफिल है. सो बैकफिल है तो बैकफिल की वजह से क्या होगा, एक लेटरल प्रेशर होगा जो मैंने अभी बताया था. सो लेटरल प्रेशर अगर हम बनाए तो ये आपका लेटरल अर्थ प्रेशर हो गया है. सो मैक्सिमम वैल्यू जो कितनी होगी, डेट इज KA इंटू गामा इंटू H एंड h/3 पे जो है ये डेट इज h/3 पे एक्ट करेगा. सो डेट इज इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेट इज KA गामा H²/2 जो हमने फाइंड किया है. सो दूसरा जो होगा डेट इज वेट ऑफ अर्थ सपोर्टेड ऑन द हील स्लैब. सो बेसिकली क्या है, ये आपकी टो स्लैब है, ये आपकी हील स्लैब है. तो हील स्लैब के ऊपर क्या है, डेट इज अर्थ प्रेशर है, तो उसका वेट होगा डेट इज W1 जो डाउनवर्ड हो रहा है. सेकेंड क्या है, डेट इज वेट ऑफ स्टेम, तो दैट इज W2, ये आपकी है दैट इज वर्टिकल वॉल जो स्टेम बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज क्या है, डेट इज वेट ऑफ बेस स्लैब. सो बेस स्लैब ये आपकी पूरी बेस स्लैब है, उसका वेट दैट इज W3. इसके बाद है क्या, इन एडिशन टू द अबव फोर्सेज देयर इज द वेट ऑफ अर्थ रिटेन अबव द टो स्लैब W4 एंड द पैसिव अर्थ प्रेशर PAH एक्सल्टेड ऑन द वॉल. सो अगर ये टो स्लैब है, इतना पोर्शन हमारा टो स्लैब होता है, टो स्लैब के ऊपर भी आपका हमने क्या कर दिया, अगर ये अर्थ जो है अर्थ का मटेरियल जो है रिटेन्ड है. सो ये भी फोर्स होगा जो कि डाउनवर्ड होगा W4. ये फोर्स अभी ये क्या कर रहा था, ये फोर्स जो एक्ट हो रहा था, ये फोर्स क्या कर रहा था, ये बेसिकली फोर्स कर रहा था. सो इस फोर्स की वजह से क्या हो रही थी कि हमारी वॉल जो है वो अवे फ्रॉम दी बैकफिल हो रही थी, दैट इज इसके लिए एक्टिव फोर्स हो रहा था, एक्टिव प्रेशर हो रहा था. इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि हमारी वॉल जो है मूव कर रही है बैकफिल की वजह से, तो ये आपके दैट इज ये प्रेशर जो होगा दैट इज पैसिव प्रेशर होगा. सो these two are neglected in the design of the retaining wall as these are the small in size and design is on the conservative side by the neglecting them. So basically क्या है, ये जो W4 है और जो पैसिव प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे, ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, तो इसको जनरली हम क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं. तो मेन फोर्सेस कौन से एक्ट करेगा, दैट इज एक लेटरल फोर्स जो वेट ऑफ अर्थ सपोर्टेड ऑन हील स्लैब दैट इज W1, वेट ऑफ स्टेम दैट W2 एंड द वेट ऑफ द स्लैब दैट इज W3.